Potassium, sodium, calcium, magnesium. This is the decreasing order of the reactivity. Potassium is most reactive in among these elements. So केदारनाथ का माली आलू जीरा फीका पकाता है, क्यों हम आगे और पकाएं? Okay, this element is hydrogen. These metals are more reactive than hydrogen, and these metals are less reactive than the hydrogen. Okay. Excuse me, ma'am. Yes, Aryan. Ma'am, PT means? PB lead. Ma'am, PT, which is PT after platinum. AG. Platinum. Okay, ma'am. मैम पकाता है, उसके बाद क्यों हम आगे और पकाएं? ओके मैम. Okay, students. Now we will start with the chapter light. Very important chapter of class 10th. छोटा चैप्टर है, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम. Yes, students, what do you mean by light? Source of energy. Source of energy. Source of energy. Only source of energy. Light is a source of energy that helps us to see the world around us. Source of energy which enable us to see. That is called light. Okay. What is the speed of light? And 3 lakh kilometers per second. 3 into 10 raised to power 10, 3 into 10 raised to power 8 meters per 3 second. into 10 raised to power 8 meter per second. इसके साथ हमें कुछ और बोलना चाहिए या नहीं? This is sufficient. Ma'am, it is the speed of light in vacuum or air. Yes, this is the speed of light exactly in the vacuum, but we can say in air there is very less difference, 2.96 into 10 raised to power 8. So we take same value of the speed of light in vacuum and or air. Okay, so this is the speed of light in vacuum or air. So these medium are the rarest medium. As the medium become denser, what is the effect of that density on the speed of light? It decreases. Yes, it decreases. So this is the maximum speed of light, and when it passes from the denser medium, that become lesser. Okay. Now, what are luminous objects? Ma'am, which have their own light. Which omits Ma'am, light. Yes, Ma'am, which have which their emits own light. light. And other objects are called non-luminous object. Okay. Give one example of luminous object. Ma'am, sun. Ma'am, sun, star. Sun. Yes. Ma'am, And bulb. other? Ma'am, star. Venus fly. Ma'am, star. Tube. Fire. Fireflies. Yes, candle. Ma'am, fireflies. Yes, fireflies. Burning candle is also the example of luminous object or not? Yes, ma'am. Yes, Yes. that is also a luminous object. And what about yourself? Ma'am, non-luminous. Non-luminous. I'm non-luminous. Okay. If we are non-luminous, or the objects which are placed in our room, they are non-luminous, then how we are able to see that objects? Ma'am, the light falls Reflection. from reflect the Yes, light. Atharva. Atharva, you speak. From the tube lights or the LED bulbs in our room, we are able to see objects through them. Yes. When Ma'am, due to reflection of light, when the light strikes into our eyes, then yes, when light fall on an object, it reflect the light, and that reflected light, when reaches our eyes, we are able to see the different objects, right? Yes. Yes. Now, reflection of light. First, I want to take the topic color. Okay, if any object is visible to you in the color red, why it is appearing red? And because that color is being reflected into our eyes.
Yes, red color is entering our eyes. And what about other colors? वो कहाँ गई इसमें? In the body. These are absorbed. Okay. The red, the most prominent color in the light, and the other colors are absorbed in the atmosphere. In the atmosphere. And in the object. Man in the object. Yes. Any material which is visible to you red, it means that is absorbing all the other colors. All other colors are, that is Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Okay. So this red, जहां पे मैंने red लिखा है बेटा, जो आपको red color में दिख रहा है, that is absorbing violet, indigo, blue, green, yellow, orange, all these colors, but it is not absorbing red color, and so that red color is reaching to our eyes. And if I am writing here blue, it means this is absorbing all the color violet, indigo, green, yellow, orange, red, and blue color is emitted. So that is reaching our eyes, so it is appearing blue. And if any object is visible to us that is white in color, why it is white? Yes, Anaisha? Ma'am, all colors are reflecting back. Yes, it means all colors are reflecting because these 7 colors, when blend with each other, they form white color. So if any material is appearing you white, it means that is emitting all the light radiations and all colors are reaching to your eye. So that is appearing white. That's why white is very soothing color, very cool color. समर सीजन में हम इसीलिए व्हाइट कलर के या लाइट जो क्लोथ्स हैं उनको पसंद करते हैं बिकॉज कि वो लाइट को एमिट कर देते, सो दे रिमेन कूलर. ओके, Excuse me, ma'am. यस अनुज. Ma'am, please explain one time that when the color appears blue. It means that is absorbing violet, indigo, green, yellow, orange, red, all colors, and it is emitting blue color. Means that ma'am, any 6 color will be absorbed and it will give 7 color. Yes, light जो Okay. है, light means which enable us to see, and light is made up of these 7 colors. Okay, so there are always 7 colors. By mixing these 7 colors, different shades are formed. Ma'am, this is the Yes. spectrum which we get, ma'am, when white lights ma'am, Yes. splits. That spectrum you have seen anywhere, that spectrum. Ma'am, rainbow, ma'am. Yes, Ma'am, rainbow. Yes, in rainbow. You can see all these 7 colors. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, Aditya. मैम रेनबो के अलावा और कहीं मैम दिखता है? रेनबो के अलावा और कहीं? मैम प्रिज्म में. हाँ हाँ, प्रिज्म में. Ma'am, as we अच्छा, know that रेनबो when all 7 the colors. 7 colors. मैम मैंने कभी कभी मैम सीडी में भी देखा है. हाँ, सीडी में भी दिखता है They बेटा, form जहाँ पे white color, रिफ्लेक्शन ma'am, होगा but, लाइट का वहां पे आपको सब दिख सकता है. प्रिज्म जो है उसमें भी लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, तो वहां पर 2 surfaces हैं which are inclined over each other, so we are able to see different colors. ये जो 2 objects हैं जहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, सो रिफ्रैक्शन जो है उसके कारण यहाँ पे जो इसके कलर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सो वी आर एबल टू सी ऑल दीज डिफरेंट कलर्स. तो यहाँ पे विबग्योर आपको शो होता है. ओके, प्रिज्म सीडी में भी दिखता है बहुत बार. यस, नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लैक? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ब्लैक, व्हाई? Ma'am, It's no color is appearing- reflecting, ma'am. Sorry, Yes. ma'am, absorb हो जाएगा. It is absorbed, it is absorbing all the colors. Okay, that's why it is appearing black. Ma'am, इसलिए when जब आप- all the अगर आप- colors are appearing, it is form white. Yes, and if it is absorbing all the colors, it appear black. No color is reaching to your eye from that object, that's why it appears black. Okay, that's why जो black Ma'am, color please होता explain है, one more time. White and black. white means all colors
are reflected by that object, and these all colors are reaching to your eyes, so you that object is appearing to you white. Okay, black means that particular object is absorbing all the colors. उसने सब कुछ absorb कर लिया, nothing is coming to you, कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या होगा? That will appear black. Like जब अंधेरा हो जाता है, रात को लाइट ऑफ कर देते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता ना, that is black, because कहीं कोई लाइट ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं. So similarly, the object which is black, it means that is absorbing all the radiations. इसीलिए अगर आप ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनते हो तो दैट उसमें आपको ज्यादा गर्मी लगती है, बिकॉज उसने सारी की सारी रेडिएशंस को, सारी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया. ओके, Yes, Ma'am, and in white? व्हाइट में हमें कूल लगता है क्योंकि ऑल कलर्स आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड. मैम. यस, मैम अगर हम लोग कॉटन क्लॉथ पे लाइट कलर में पहने, डार्क कलर में वो डार्क कलर में कॉटन क्लॉथ पहने और लाइट कलर में ऊनी कपड़ा पहने, तो मैम दोनों में सबसे ज्यादा गर्मी किसमें लगेगी? जो ऊनी कपड़ा है बेटा उसमें. मैम वो तो लाइट कलर में है. हाँ हाँ, वो लाइट कलर का देखो यहाँ पे दो इफेक्ट है बेटा, एक तो हो गया लाइट का इफेक्ट और दूसरा हो गया उस क्लोथ की जो वर्क है वो वाला, है ना. तो अब आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास आपको आपने पहने कॉटन क्लोथ, ठीक है, दूसरा आपने पहने वूलन क्लोथ. अब जो वूलन क्लोथ है बेटा, इसका व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वूलन क्लोथ? इट विल स्टॉप द एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी बिटवीन यू एंड द सराउंडिंग. तो जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो जो आपकी हीट है बॉडी की वो आपके अंदर ही रहेगी, वहीं पे रहेगी, सो यू विल फील वार्मर, चाहे उसका कलर लाइट है चाहे उसका डार्क है. Ma'am, बट that's कॉटन why we क्लोथ्स, wear in winter, ma'am. yes, To keep that's why us we warm. wear, yes, to keep us warm, because woolen cloth stops the exchange of heat between our body and the surrounding. Okay, cotton cloth will absorb the sweat, and when that sweat get evaporated, that will make us to feel cool. यस मैम. Yes. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा. एक्चुअल में जो हमारी बॉडी है बेटा, उसके अंदर स्किन में एक पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड मेलानिन. ऐसे लोग जिनमें मेलानिन ज्यादा होता है, दे अपीयर डार्क, एंड पर्सन विच आर हैविंग लेस क्वांटिटी ऑफ मेलानिन, दे आर व्हाइट इन कलर. ओके, उनका जो कलर है वो लाइट हो जाता है स्किन का. What is melanin? Melanin is the pigment which is present in our skin, which decide our body color, skin color. Skin का जो हमारा कलर होता है बेटा, वो डिसाइड करता है melanin. That is a pigment. ठीक है. Like आप लोगों ने क्लोरोफिल सुना बेटा? Yes, ma'am. What is Yes. chlorophyll? मैम Green pigment present in plants. Yes, it is a green pigment. green color to the Yes, it gives green color to the Plant. leaf, and due to this chlorophyll, plant is able to do the photosynthesis. Why this is green in color? Because it is absorbing all other radiations and it is emitting green color. और उसी ये देखो, ये लाइट को कैप्चर कर पा रहा है, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशंस को, और फिर उसके कारण ये केमिकल रिएक्शन करवाता है. ओके, सो दिस ग्रीन, ये ग्रीन पिगमेंट है. ड्यू टू दिस पिगमेंट द प्लांट इज अपीयरिंग, और the leaves of the plant which are having chlorophyll, they are green in color. Similarly, in our skin there is one pigment, that is melanin, which give the color to our skin. But जो हमारी स्किन है बच्चे, उसमें ग्रेडेशन बहुत ज्यादा है. The quantity of melanin will decide which color we will have of our skin.
जो बहुत लाइट मतलब व्हाइट कलर के होते हैं, जिनका मतलब कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं होता, दे हैव वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन। तो जैसे जैसे डार्क पड़ते जाते हैं, यानी कि उनकी स्किन में मेलेनिन ज्यादा होता है। मेलेनिन हेल्प्स टू रिफ्लेक्ट द रेडिएशन। मेलेनिन जो है वो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो अब देखो, अगर आप सन के सामने रहते हो ना, ज्यादा काम करते, तो टैनिंग का मतलब यही है कि उस टाइम पे आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, आपको उसको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। तो इस कारण से टैनिंग भी हो जाती है और मेलेनिन जो है वो भी आपकी स्किन के अंदर ज्यादा फॉर्म होता है। जब धूप में, जो लोग धूप में ज्यादा काम करते हैं, आपने देखा होगा कि दे आर ऑलवेज डार्क इन कलर, बिकॉज their skin get adapted कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, तो मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, राइट? मैम बट डार्क कलर तो अब्सॉर्ब करता है लाइट, और डार्क कलर जो पीपल है करता है बेटा, बट दिस इज द पिगमेंट मेलानिन। ये मतलब वो डार्क कलर है, बात ठीक है बेटा, बट जो मेलानिन पिगमेंट है, इस पिगमेंट के अंदर जो स्पेशल चीज है वो ये कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम डार्क कलर्ड पीपल ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, और यस absorb- यस यस यस। मैम जैसे उनको क्लोरोफिल required का है, एक dark color स्पेसिफिक people कलर की है requirement। ग्रीन, तो मेलानिन का कोई स्पेसिफिक कलर है क्या? किसका बेटा? मैम जैसे क्लोरोफिल का ग्रीन है स्पेसिफिक कलर, तो ब्लैक, मेलानिन का है ब्लैक क्या? कलर। ओके मैम। मैम इसीलिए ट्रॉपिकल प्लेसेस में लोग ज्यादा डार्क डार्क होते हैं, यस यस यस, क्योंकि वहां पे लाइट रेडिएशंस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, एंड उनकी स्किन जो है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहती है। मैम मेलानिन हमें स्किन कैंसर से बचाता है क्या? यस, यू कैन से दैट। यस, नेक्स्ट इज, okay, if you have a red flower मैम and you want to see this in the green light, in the room there is only green light and there is red flower in the room, तो उस कलर, उस फ्लावर का क्या कलर अपीयर होगा? मैम ब्राउन। ब्लैक। वाई ब्लैक? ये जिस मैम बच्चे ने green। ब्लैक बोला वो बोले ब्लैक क्यों बेटा? मैम बिकॉज वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस वक्त। यस, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो इसके लिए यू कैन यूज दिस कलर व्हील। तो कोई चीज जो बेटा रेड फ्लावर है, इट मींस ये सारी की मिस सारी इसमें आई कहाँ? एब्सॉर्ब कर लेता है, ओनली रेड को एमिट कर रहा है ना, ओनली रेड को एमिट करता है। बट रूम में लाइट कौन सी बेटा? ग्रीन, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द रेड। ग्रीन इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द रेड, so this red flower will absorb all the green radiation, nothing will come to you। सारी ग्रीन रेडिएशन इसने एब्सॉर्ब कर ली, उसके ऊपर आपने पहले कोई और लाइट तो फॉल ही नहीं करी, सिर्फ ग्रीन लाइट ही थी, और ग्रीन लाइट को ये सारा का सारा क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। नथिंग विल कम टू योर आईज, सो इट विल अपीयर ब्लैक। ओके, इंडिगो छोड़ देते हैं बेटा, हम ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्लू, वायलेट ब्लू को एक जैसा सा ले लेते हैं। तो दिस इज द रफ कलर व्हील विच विल हेल्प अस टू कि किस चीज को किस में देख। रेड फ्लावर को अगर आप रेड लाइट में देखोगे तो कैसा दिखेगा? रेड। रेड, मैम रेड। यस रेड। ऑरेंज फ्लावर को ब्लू लाइट में देखोगे कैसा दिखेगा? मैम ब्लैक। बिल्कुल ब्लैक, मैम ब्लैक। ठीक है। सो दिस इज कलर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, Ma'am, if we will see blue flower in orange light, then also it will be black. yes, then also it will be black. Violet in yellow or yellow flower in violet, both then Yes, black. black. If blue color we will see in green color, blue color flower in green color light. In green light, then it will, एक minute, blue colored flower in the green light. Okay, then it will show blue green color,
बिकॉज बेटा ये जो कंपोनेंट होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब कि इसके आसपास वाला कलर वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके आसपास वाला कलर रिफ्लेक्ट करने के कारण वो आपको हल्का ग्रीन दिखाई देगा। मैम बट ये हल्का हल्का वायोलेट भी तो दिखा सकता नहीं, उधर वाला तो कलर ही नहीं डाला ना आपने, ग्रीन लाइट है तो इधर की साइड ही रहेगा वो। ऑरेंज डालोगे तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, है ना, जो ब्लू ऑब्जेक्ट है। बट ग्रीन दोगे तो वो हल्का ग्रीन दिखाई देगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है। कुछ ब्लू पर green रेड को- डालेंगे तो ब्लू पर रेड डालेंगे तो वो वायलेट दिखेगा बेटा। ओके मैम। अब ब्लू पे वायोलेट डालेंगे तो हल्का सा वायोलेट दिखेगा। तब इंडिगो हो जाएगा बेटा वो, मैम रेड इंडिगो, पे येलो डालेंगे तो ऑरेंज क्योंकि इंडिगो हमने इसके बीच में छोड़ दिया ना, तब वो इंडिगो हो जाएगा। मैम यस बेटा, मैम रेड पर येलो डालेंगे तो फिर ऑरेंज ऑरेंज, दिखेगा। ऑरेंज, यस यस यस, इट विल अपीयर ऑरेंज। Okay, now next is reflection of the light. By plane mirror. You have seen plane mirror? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, एडोलेसेंट एज में सबसे ज्यादा मिरर देखने का काम तो इसी एज में स्टार्ट होता है, बहुत देखते होंगे। ओके, तो मिरर किस चीज से बनता है बेटा, पहले ये बताओ कैसे बनता है mirror? मैम ग्लास। बिल्कुल ठीक, ग्लास। अब ग्लास में ऐसा क्या है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया? Ma'am, उसके ma'am, पीछे it has a coating सिल्वर या of एल्यूमिनियम की silver. प्लेटिंग होती है। Yes, ma'am. यस, प्लेन ग्लास है बेटा, बिल्कुल प्लेन ग्लास। हमने ग्लास इसलिए यूज किया क्योंकि इसकी जो सरफेस है दैट इज वेरी स्मूथ, दैट्स वाई वो ग्लास लेना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगी। इसके पीछे की साइड में सिल्वर की कोटिंग होती है बेटा, सिल्वर की कोटिंग होने के कारण ये जो सरफेस है ये बन जाती है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन अब ये शो करेगा। मैम तो यस हार्दिक, मैम जैसे हम देखते हैं कि प्लेन मिरर के ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती है। यस बिल्कुल। मैम ऐसे अगर हम लोग वो डिटेक्टिव लोग जैसे वो यूज करते हैं ना, एक कौन सा ग्लास होता है वो, एक मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास। मैम हाँ। उसको अगर हम लोग लाइट के सामने ले जाते हैं और किसी चीज को देख रहे होते हैं तो उस पे आग लग जाती है, ऐसा हाँ। क्यों? बिकॉज दैट इज नॉट अ मिरर। मैम वो लेंस है। वो लेंस है बेटा, एंड दिस इज मिरर। अगर आप प्लेन ग्लास लेते हो बेटा, बिल्कुल प्लेन ग्लास है, इस पे कोई भी पॉलिश नहीं की गई, तो इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आप अपनी विंडोज को देखो, विंडोज में बिल्कुल प्लेन ग्लास लगा है, उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसमें से लाइट मैम द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच यू गेव इन दैट वन मैम बैक साइड देयर विल बी सिल्वर कलर वाटर पेंटिंग दैट वन। हाँ, सिल्वर पेंटिंग बेटा, सिल्वर की पॉलिश करते हैं बेटा। ओके मैम ओके मैम। यस, मैम लेकिन जो मिरर प्लेन मिरर जो होता है वो तो सिलिकॉन का बना रहता है ना? सिलिका। प्लेन मिरर जो होता है बेटा दैट इज सिलिकेट्स ऑफ सोडियम कैल्शियम, इन सबका मिक्सचर होता है, सिलिकेट्स है। मैम इज देयर एनी अदर मेटल इंस्टेड ऑफ सिल्वर पॉलिश? हाँ, दैट इज एल्यूमिनियम, वी आल्सो कैन आल्सो यूज एल्यूमिनियम। पर ज्यादा अच्छा जो रिफ्लेक्टर है बेटा वो सिल्वर ही होता है, सिल्वर यूज करते हैं, इसके अलावा एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। ओके जो मैग्नीफाइंग ग्लास है बेटा दैट इज ग्लास नॉट अ मिरर, एंड दिस इज मिरर बाय ड्यू टू बिकॉज वी हैव पॉलिश इट्स वन सरफेस, इसकी एक सरफेस पे हमने पॉलिश कर दी, अब ये बड़ी स्मूथ सरफेस है बेटा, ड्यू टू दिस स्मूथ सरफेस when light ray fall on this it will get reflected towards the same medium, जिस मीडियम से लाइट आई थी बेटा उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ओके नाउ
there is one imaginary line on this surface. That imaginary line is called normal. Very good. That is called normal. Normal forms is at 90 degree with the reflecting surface. Normal is at 90 degree angle with the reflecting surface. Okay. Now the angle between the normal and this incident ray. 45 degree. Ma'am, it is This equal. Angle of This incidence. angle is called angle I, angle of incidence, and this angle between Angle this normal Angle of and reflection. Angle of reflection. angle of R. reflection, that is denoted by R. According to laws of reflection, this angle I is equal to angle R. Ma'am, but it is not sure that both will be of 45 degree. It can be of any degree between 0 to 90. Yes. It can be any degree 0 to 90. I जो है वो 0 to 90 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है 45 हो। मैं I और R इक्वल होंगे बस हमेशा। आप कभी कार में बैठे हो, आपने देखा हो कि आप जहां पे बैठे हो वहां से आपको जो सामने एक रियर मिरर लगा रहता है, रियर व्यू मिरर, तो वो जो रियर व्यू मिरर है उसमें से आप सामने ड्राइवर वाली सीट पे किसी को देख सकते हैं। यस मैम। तो जिस पर्सन को आप देख सकते हो उसमें से वही पर्सन आपको भी देख सकता है। मान लीजिए आप जो है जो गाड़ी है उसके अंदर ये जो 4 सीट्स हैं, इनमें आप यहाँ पे बैठे हो और यहाँ पर जो मिरर लगा है जो ऊपर, उसमें आप इस सीट पर बैठे हुए पर्सन को देख पा रहे हो, तो वो पर्सन भी आपको देख पाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं किसी को ना देख पाऊं तो वो भी मुझे नहीं देख पाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल श्योर है? यस बिल्कुल श्योर है बेटा, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ से जो लाइट जाएगी बेटा बिल्कुल सामने, यहाँ पे जो पर्सन बैठा है उसके लिए यहीं से जाएगी ना लाइट, उसके लिए एंगल ये बन गया, तो उसके लिए रिफ्लेक्टिंग रे का ये वाला पॉइंट हुआ, और इस पर्सन के लिए आई है तो ये एंगल आर है। So these two person are able to see each other in this mirror. वो एक दूसरे को देख सकते हैं बेटा इस मिरर के अंदर एक दूसरे को। ओके मैम? यस रितंजय। जब लाइट मैम 90 डिग्री पे जाएगी तब तो मैम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 90 डिग्री का होना चाहिए। हाँ, वहाँ लेकिन पे जब 90 डिग्री पे जाएगा तब तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा बेटा, देयर इज नो रिफ्लेक्शन। वो लाइट रे पैरेलल टू द मिरर ही चली गई। तो मैम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, एंगल ऑफ फिर पैरेलल चली गई ना बेटा, वहां पे तो रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, पैरेलल आ गई वो। पैरेलल का मतलब वो अपने आप आई और आर इक्वल हो गया। ओके मैम। यस खुशी। मैम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज इक्वल होता है ना? यस ऑलवेज इक्वल होता है बेटा, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ओके मैम। ओके एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम जैसे मैम मैंने कुछ मिरर देखे मैम, वो थोड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं मैम, जिसमें मैम कभी हम लोग बड़े दिखते हैं या फिर कभी छोटे दिखते हैं। Those are not the plane mirror, वो प्लेन मिरर नहीं है बेटा, वो कन्वेक्स है, कनकेव है, उनके ऊपर अभी हम आएंगे। अभी सिर्फ हम प्लेन मिरर को डिस्कस कर रहे हैं। वो स्पेशल टाइप के मिरर होते हैं बेटा, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। ओके मैम। दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। ओके तो आप सबने अपने आप को मिरर में देखा हुआ है, ठीक है। तो जब मिरर इमेज बनती है लाइक ए, इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो इसकी मिरर इमेज जो बनती है बेटा दैट इज लाइक दिस। एक ये वाला क्वेश्चन भी आता है बेटा एनटीएससी में, हालांकि इसका नहीं जनरल में आता है साइंस से रिलेटेड, बट अभी आपको क्योंकि आ ही गया तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज ऐसी बनेगी ना बेटा प्लेन मिरर से। यस मैम, मिरर इमेज और वाटर इमेज। क्या ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी? यस सुपर इम्पोज मींस ओवरलैप। ये इसके ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा। बिल्कुल। यस मैम। नाउ आई एम टेकिंग द अल्फाबेट पी। नो।
नो मैम। इसकी मिरर इमेज में बनाऊंगी तो इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, तो इसमें क्या ओवरलैप हो जाएगा? नो मैम। इसमें No, ओवरलैपिंग इज No, नॉट ma'am. पॉसिबल। ओके, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि जो आपको दे सकते हैं कि मैम इसे क्या बोलते हैं? पहले वाले को सुपर इम्पोज बोलते हैं और इसे नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। दिस इज सुपर इम्पोजेबल इमेज एंड दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। ओके, तो ये एक्चुअल में ये हो गया आपका सिमेट्रिकल। जो सुपर इम्पोज होते हैं बेटा दे आर सिमेट्रिकल। आपको अगर मिरर इमेज नहीं समझ में आए तो बेटा इसको आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पा रहे हो ना सेंटर से, इससे ये सुपर इम्पोज हो रहा है। जहां पे 2 इक्वल पार्ट्स नहीं बन पाते हैं वहां पे वो सुपर इम्पोज नहीं होता है। ओके, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि जो ये अल्फाबेट्स हैं इसमें कौन सा अल्फाबेट जो है वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा या ओवरलैप नहीं होगा। ओके, तो आप इस मैम? टाइप से यस मैम बी हॉरिजॉन्टली कट हो सकता है? डी मैम बी बी हाँ। बी बी हॉरिजॉन्टली कट हो सकता है बट हॉरिजॉन्टल नहीं करना, हमने लॉन्गिट्यूडनल करना है। ओके मैम। यस शालिनी। Shalini, I'm not able to, you are not properly audible. Yes, ma'am. Yes, Shalini, what is your doubt? मैम अगर प्लेन मिरर लाइट है तो प्लेन मिरर का कलर क्या होगा? मुझे नहीं समझ में आया बेटा, क्या बोला इसने बच्चे? किसी और को पता लगा? प्लेन मिरर का कलर क्या होगा ये मुझे समझ में आ गया, बट कहाँ पर पूछा इसने? कोई और बच्चा जिसको समझ में आ गया हो इसका क्वेश्चन बताए मेरे को। Okay, Roseanne, you can ask your question. Ma'am, Shalini, ask your question in the chat. ma'am, Yes. is there a rule that the angle of incidence and angle of reflection that sum should be 90? No. Any rule for 90 degree? Yes, ma'am. Normal is at 90 degree always, but there is no rule for the angle because that may vary. Angle of incident and angle of reflection may vary. Okay, ma'am. Okay. Yes, students, ये अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों को जो 26 अल्फाबेट्स हैं उन 26 अल्फाबेट्स में से फाइंड करके रखना है कि किन की इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकती हैं। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। A B C D E F G H, like H आएगा तो H की जो मिरर इमेज है that is super impossible. Yes, Anuj. Ma'am, Ma'am, it is sure that the figure which will be symmetrical means in vertical direction, then it will be superimposed figure. Yes, yes. In vertical direction. Yes, in vertical direction. Okay, ma'am. Yes, Akanksha. Yes, Akanksha. मैम अगर मिरर इमेज की बात है तो सुपर इम्पोज वर्टिकली है, बट मैम अगर वाटर इमेज है तो फिर उसे हॉरिजॉन्टली ले सकते हैं मैम, जैसे वाटर इमेज वर्टिकली लेते हैं तो। नहीं, वाटर में भी जो इमेज बनेगी ना, horizontal. नहीं वाटर में भी जो इमेज बनेगी बेटा उसको आपको वैसा ही लेना है, ऑब्जेक्ट के साथ सेम रहेगा बेटा। वो इमेज वहां पे वाटर में इमेज भी उसी तरीके से बन रही है ना बेटा, जैसे आप यहाँ पे मिरर पे बना रहे हो ड्यू टू रिफ्लेक्शन। यस The मैम, rules लेकिन of हम reflection मिरर will उसके remain राइट same. साइड में रखते हैं और वाटर हम नीचे हम देखते हैं कि नीचे कैसा बनेगा, उल्टा हो जाता है। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा ओके मैम। ना, वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पर, बिकॉज जो इमेज बनने का वो वे है वो सेम है ना, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल रिमेन सेम व्हाटएवर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यस प्रियांशी। मैम आप एक बार वाटर इमेज और मिरर इमेज में डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि जिस दिन बताया था सर ने उस दिन मेरी क्लास किसी रीजन से मिस हो गई थी। किसने बताया था ये बात? मैम सर ने बताया कि मिरर इमेज और वाटर इमेज में डिफरेंस, तो मुझे वो क्लियर नहीं है। मेरे हिसाब से तो देखिए बेटा सारे के सारे रूल्स वही फॉलो होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? सर ने क्या बताया था? सर ने एक जैसे डिफरेंस सर ने बताया बताया था। था कि जो हाँ। ये मिरर इमेज रहती है ना वो वर्टिकली अपोजिट रहती है और जो वाटर इमेज रहती है वो हॉरिजॉन्टली अपोजिट रहती है।
ओके Yes. मैं सर से Yes. पूछूंगी बेटा, फिर इस डाउट को आपको नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली क्लियर करके बताऊंगी कि मैं अगर रूल्स के हिसाब से चल रही हूँ तो दोनों में सेम चीज होती है, बट फिर भी चलिए सर से पूछेंगे इस चीज को। Image is ma'am upside down. अपसाइड डाउन, ओके मैम उस टाइप मिरर से ले, में समझ लैटरल आया, होता है ले, और समझ, वाटर में। हाँ 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 हाँ, समझ आ गई, ये वाली बात ही ले लेंगे। ठीक है, आप वाटर में मतलब नीचे की तरफ ले रहे हो ना, ओके वो ले सकते हो। बट जो अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है बेटा वो आपका वाटर इमेज में नहीं आएगा। ठीक है, वहां पे आप जैसे ये ट्री है बेटा, तो इस ट्री की जो इमेज है वो मिरर इमेज में तो आप ये वाली लोगे, और जो वाटर इमेज लोगे वहां पे आप इस चीज को ऐसे लोगे। दिस इज द डिफरेंस ना। नो मैम, नीचे की तरफ नो बनेगा, मैम वो अपसाइड डाउन रहता एक है। नीचे अप एंड डाउन। ओके ऐसे बनाओगे, ओके ठीक है। तो वहां पर अगर ए ऐसे है तो यहाँ पे ए ऐसे बनेगा, यस मैम। राइट। अगेन दिस इज सुपर इम्पोजेबल, लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है ये भी। यस। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, जो मैं अल्फाबेट वाला बता रही थी बेटा, दैट इज फॉर मिरर इमेज ओनली, नॉट फॉर द वाटर इमेज। Ma'am, the figure which you have rounded, then it will be also the superimposed. नो, दिस इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। हमने एज इट इज सुपर इम्पोज करना होता है, इसको एज इट इज इधर स्लाइड करेंगे। जैसे मैं ए और ए बना रही हूँ तो हम इसको एज इट इज इधर स्लाइड करके इसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे इसको एज इट इज स्लाइड करेंगे तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, वाटर इमेज में ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैंने कभी भी इस चीज को वाटर इमेज के साथ नहीं पढ़ाया था, मेरे को नई चीज पता लगी। आई ऑल्सो गॉट सम पॉइंट। हम अगर ए की जगह पर बी होगा तो वो वाटर इमेज के अंदर कैसे होएगा? एक ही जगह पे वी होएगा तो वाटर इमेज के अंदर ऐसा होएगा। और ये क्या हो गया? Then it will be overlap. Yes, it will be overlap and it is superimposable in the water image. Ma'am, C is also that superimposed in Yes. water as well as in plane mirror. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। It means we can say that mirror images जो है वो symmetrical होनी चाहिए to become superimposable, and water images for unsymmetrical they are superimposable. Ma'am, C will be not that superimposed in mirror, or it will be. No, C. No, it will mirror image is not superimposable. But in that one, Yes, in water water it will be. image, yes, it will be superimposable. Okay? Yes, Yes, students, देखो हम लोग भी Yes. कुछ कुछ सीखते हैं। मैंने भी आज एक नई चीज सीखी, मैंने कभी भी सुपर इम्पोजेबल इमेजेस वाटर इमेजेस के साथ नहीं पढ़ाई। ओके चलिए अब हम मिरर इमेज पे आते हैं। ये आप 26 लेटर्स के मिरर इमेज वाला क्वेश्चन जरूर अपने आप फाइंड करके रखोगे, कौन कौन सा अल्फाबेट जो है वो उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल होती है। ओके, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस खुशी? HIMO ओके, ए कहाँ गया? ए मैम AHIMNOSTUVWXYZ। एस नहीं होगा। एस एन है। ओ MNO मैम। एन नहीं होगा बेटा, एन कैसे सुपर इम्पोज हो जाएगा? मैम नहीं होगा एन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एन नहीं होगा। एन नहीं होगा, एन नहीं होगा। यस मैम, एन नहीं होगा। TWX मैम T UV WXYZ। मैम Z नहीं है, XY। वाई भी अगर ऐसे लिखोगे तो होगा बेटा, यस मैम, एंड मैम Z नहीं है। जेड नहीं है। ओनली दीज आर द अल्फाबेट्स व्हिच विल बी सुपर इम्पोजेबल। ओके Yes, यस मैम। ओके, वेरी फास्ट। नेक्स्ट इज प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है बेटा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर?
It is laterally inverted. They are of same Yes. size. What is the mean of laterally inverted? मैम वो right को Ma'am, left right to और right left and को right to right left. के Ma'am, Yes. AWT. Left to right, right to left. Yes. Laterally inverted, Right left to seems to be right. left and left seems to be right. Very good. The right seems to be left and left seems to be right. Yes, this is first point. And Second second point. one, Same the side. image is virtual and Distance erect. between Raise your hand. Raise your hand. Khushi, you tell beta Khushi. Yes, ma'am. The image will be formed will be virtual and erect. Virtual and erect. Okay. What do you mean by virtual and erect? These are two different words. So explain one by one. Ma'am, can I? Anaisha. Virtual means Anaisha. मैम virtual means मैम ये मैम ये behind the mirror image बनाएगा मैम ये virtual और मैम erect का मतलब say this, you can say that this image is visible only in the mirror. You cannot obtain that image on the screen. Yes, that image is called a virtual image. And what is the meaning of erect? Yes, Deva. Yes, Deva, speak up. What is the meaning of erect? Erect means the object is the image is opposite. Yes, मतलब जो इमेज सीधी है तो सीधी ही दिखेगी. लाइक वहां पर जैसे आपने देखा था वर्टिकली वो अपसाइड डाउन हो गया था इन द वाटर इमेज, तो वैसे नहीं होगा. जो ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहेगा सामने आपको, बिल्कुल वो इरेक्ट. Ma'am, in first one laterally inverted. Ma'am, in this one, ma'am, that right will be look at the left and left will be as right. Yes, बिल्कुल ठीक. लाइक Is there सी जो any है वो other ऐसे point हो also? गया, यही बेटा लाइव राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट हो जाता है, वो उसी को हम कह रहे हैं लेटरली इन्वर्टेड. ओके, व्हाट अबाउट द साइज? Same size as Ma'am, also. same size. Same size as object. Same size. Ma'am, distance will be also equal. Yes. Yes, ma'am. Distance. इसका डिस्टेंस इक्वल, ये बताओ डिस्टेंस किसका इक्वल? मैम mirror से Ma'am, same pole से focal Yes. है. Image का mirror. The object and image. Yes, object and image from mirror Yes, ma'am. Yes, ma'am. are equally far. ठीक है, वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वली दूर होंगे. Okay, a person is standing in front of mirror and that is at 2 meters. Now that person move 2 meters away from the mirror. Now what is the distance between the image and that person? 8 meter. 4 meter. 4 meter. 4 meter. 8 meter. 4 meter to mirror and 4 Ma'am, meter 8 meter. to image. Yes, what is my question? My question is how much, what is the distance between the person and its mirror image? 8 meter. 8 meter. 8 meter. Okay, तो अभी जो उसकी इमेज थी बेटा वो पहले 2 मीटर पर ही थी, बट अगर ये पर्सन 2 मीटर पीछे जाएगा तो इमेज भी 2 मीटर पीछे चली जाएगी. सो द डिस्टेंस विल बिकम 8 meter. Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, that image will be laterally inverted. Yes, laterally inverted image. This image will be laterally inverted. Ma'am, you have written LATUALLY, no? Okay. Okay. Now there is one point, that is magnification. Magnification is denoted by M.
and this is equal to h dash by h. Now h dash is size, yes, height of image by height of object. बिल्कुल ठीक. There are some sign conventions which we use just like your graph. आप मैथ्स में जो ग्राफ करते हो बेटा उसी के अकॉर्डिंग है. सेंट्रल पॉइंट आपका 0 है बेटा. ये आपका मिरर लगा लीजिए आप. मिरर होगा, लेंस होगा, कुछ भी होगा. उससे राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे दे ऑल आर पॉजिटिव. इसके लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे दे आर नेगेटिव. अपवर्ड ऊपर की तरफ आप मेजर करेंगे दे आर पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो दे आर नेगेटिव. Ma'am, whether the object will be in negative side or positive side, any side, it will be considered as the graph now shown. जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इसी साइड पे रखते हैं, ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड. ऑब्जेक्ट को हमेशा हमने लेफ्ट साइड में रखना है. दिस इज बाय कन्वेंशन वी हैव अज्यूम कि हमने हमेशा ऐसे ही लेना है. ओके, सो m इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब हाइट तो बेटा इसी तरफ मेजर होगी या इस तरफ मेजर होगी. जो आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जो इमेज बननी है, मान लीजिए ये मैं मिरर रख रही हूँ, तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर अगर है तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी. यही होगा ना? यस मैम. यस मैम. हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव. Ma'am, positive. Positive. And for plane mirror, height of image and height of object remains the same. It means what is the value of magnification for the One. plane? That Plus is one. plus one. Plus one. So, if for a mirror the value of magnification is +1, what does it indicate? The image is virtual. Image is virtual. Erect. Yes, Rosine, you tell beta. Ma'am, can you please repeat your question? If the value of magnification for a mirror is +1, what does it mean? Ma'am, it means that the image is virtual, erect. Image is and virtual, it is erect. of the same size as the. It is as the same size of the object, and it is the image distance is equal to the object distance. Okay. Ma'am, this value of magnification is +1 in plane mirror. Yes, +1 in plane mirror, but this +1 indicates ये किसी और मिरर के लिए भी हो सकता है बेटा. तो इससे आपको इंडिकेट क्या हो रहा है, पहले वो चीज सीखनी है हमने. ओके, यहाँ पे दो चीजें बेटा, एक है प्लस और एक है 1. ओके, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1? 1 मीन्स द size of image is equal to size of object. 1 का मतलब ये है, if m is equal to +2, it means the size of image is double to the size of object. That's why answer is 2. Right? जो वैल्यू है वहां से आपको साइज के बारे में पता चले. Second point is this positive sign. What does this indicate? Okay students, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग आप अच्छे से समझो. ये आपकी वो एक्सिस है जिसपे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, मिरर को, लेंस को रखते हो. खुशी, म्यूट योरसेल्फ. Ma'am, I have a doubt. You can raise hand. Okay, sorry, ma'am. तो इन दिस केस आपने क्या करना बेटा, यहाँ पे जैसे मिरर है या आपका लेंस है, कुछ भी रखोगे, दिस मैग्निफिकेशन पॉइंट इज सेम फॉर ऑल, वेदर इट इज अ मिरर और अ लेंस.
तो आपने ऑब्जेक्ट को तो यहीं पे रखना बेटा. Means height of object is always positive. What is m? That is h dash over h, and h is the height of object. Height of object is always positive. If magnification is plus, it means h dash is also positive. वो इमेज कहीं पे भी बने बेटा, कहीं पर भी बने, वो पॉजिटिव आने का मतलब है, देखो ये दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमने ये बाय कन्वेंशन मान रखा है ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है और एक्सिस के ऊपर की तरफ रखना है. दैट इज ऑलवेज, h इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव ओनली इफ h dash is positive. H dash is positive only when the image is erect, and erect image is always virtual. So by this positive sign, you are getting that image is erect and virtual. By this one, you are getting that size of the image is equal to the size of the object. But by this magnification, you cannot get that point, distance of image and the distance of object from the mirror or lens. Magnification से आप distance नहीं find कर सकते बेटा. So if it is positive, it means image is virtual and erect, and if it is 1, it means the size of both are same, but distance of image and object from the mirror or lens you cannot determine with the help of m. Okay, next. Yeah, चलिए. Yes बेटा. मैम मेरा डाउट था कि जो आपने अभी मैग्नीफाइंग का बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाइन होगा, उसका फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाँ. ये ना. यस मैम, अगर मैम उसका वैल्यू अगर 0 आता है तो उससे क्या पता चलता है हमें? किसका 0 होता ही नहीं बेटा वैल्यू. मैम आपने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन 0 आया तो 0 कैसे आएगा जब आप दो पॉइंट्स को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा ही नहीं ना. 0 होगा और फिर आकर मैग्नीफाइंग होकर नहीं 0 नहीं होगा बेटा. 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, बट इट कांट बी 0. 0 मींस देयर इज नो ऑब्जेक्ट और देयर इज नो इमेजेस फॉर्म्ड. जीरो तो आएगा ही नहीं ना कभी भी आंसर. मैम पॉइंट साइज होगी. हाँ 0.1 हो सकता है. मैम इन केस ऑफ पॉइंट साइज इमेज मैम उसमें कितना मैग्निफिकेशन होता है? 0.1 लगा लो बेटा, 0.001 लगा लो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना बेटा. पॉइंट साइज में भी 0 नहीं होगा. इट विल नेवर बी 0. इक्वल टू 0 नहीं होगा. इट मे बी 0.01. That is possible, but it can never be 0. Yes, Anuj. Yes, ma'am. मैम जो इमेज जो वर्चुअल होगा वो मैम कभी भी वो तो इमेज तो मिरर में दिखेगा नहीं. Virtual image is always visible in the mirror. You cannot which is not that. visible. That one real image. Okay, ma'am. Real image you are obtaining on the screen, not in the mirror. Ma'am, the distance of object and image both cannot be determined with the help of magnification. Yes. In case of only plus or in case of minus also. Yes. Yes, Aryan. What is your doubt? आपने बोला कि वो डिस्टेंस हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैम जैसे हमने अभी पढ़ा है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है ना. वो बच्चे उसमें फिर ये है ना कि यहाँ पे तो आप साइज को कंपेयर कर रहे हो है ना. अगर आप यहाँ पे ये लेते हो तो आप सिर्फ डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हो. और उसमें भी कंपैरिजन का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता होगी तभी दूसरे को फाइंड करोगे ना. Yes, ma'am. And this formula is different for if you are applying V and U, that formula is different for both lens and mirror. Okay, if the magnification height तो मैम पॉजिटिव होगी ना. No. Height of for plane mirror it is positive. H dash is positive. अगर मैं -2 देती हूँ आपको, एक magnification for an image is -2, what does it mean?
मान लीजिए वो प्लेन मिरर नहीं है, कुछ भी है, मिरर कोई किसी भी टाइप का मिरर है, हमारे पास मैग्निफिकेशन -2 आया, तो इसका मीनिंग क्या है? रेज योर हैंड्स। यस आर्यन, अरहम, अरहम आप बताइए बेटा। अरहम यू स्पीक। मैम रियल एंड अपसाइड डाउन। फर्स्ट पॉइंट यू हैव टोल्ड दैट इट इज रियल यस एंड मैम। अपसाइड डाउन, बिल्कुल ठीक, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। अपसाइड डाउन इज कॉल्ड इन्वर्टेड, बिल्कुल ठीक है बेटा। व्हाट अबाउट द साइज? Image will be smaller than the object. स्मॉलर 2 है बेटा ये। Ma'am, sorry, ma'am, double, ma'am. Double to the image is double to the size of the object because magnification is 2. So this 2 is describing the size of the image as compared to the object, and this negative sign is showing that object is on this side and image is on this side. That's why it is negative. क्योंकि आपने लिखना है क्या? Ma'am, in plane mirror, it will be sure that image and object both will be in positive. Yes, that's why for plane mirror, magnification is always +1. There is no variation. But for other mirror or other lens, it may vary. Okay, now next question is for a mirror or a lens, let magnification is +0.5. What does it mean? Ma'am, the object is the image is virtual, and the size of image is half of the object. Image is erect. Okay, raise hands only and then I will ask. Yes, Akanksha, you tell. Ma'am, the image will be virtual and erect. Yes, first point. By this positive sign, we get that image is virtual and erect because it is positive. क्यों positive है? Object भी ऊपर है बेटा, image भी ऊपर होगी, तभी तो H और H dash both are positive, only then we will get positive value. बिल्कुल ठीक है बेटा आकांक्षा. Now what? मैम जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो हाफ होगा. Yes, the size of object, the size of image is half of the size of the object. The size of image is half. Yes. Okay. Yes. Right? ये पॉइंट समझ आ गया बेटा. इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज there are some spherical mirror. Spherical mirror are formed by the taking some part of a sphere, like this is a sphere, not a circle. Okay, can you tell me one difference between sphere and circle? Raise hands only. Ma'am, sphere is a 3D figure. No. Raise hand only. I will ask. Simran. Ma'am, sphere is a 3D image and circle is a 2D image. Yes, sphere is 3D object and circle is 2D object. Okay. तो इस मिरर को मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो इसका एक पीस आया बेटा. अगर मैं आपको उसका 2 डिफरेंट व्यूज दिखाऊंगी तो एक व्यू तो बेटा बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आपको. एक व्यू अगर सामने से देखोगे तो वो आपको एज सर्कल दिखेगा. ठीक है. बट अब क्या करना, हमने इसकी इस साइड पे पॉलिश कर सकते हैं हम, या फिर हम इसकी इस साइड पे पॉलिश कर देते हैं. तो स्फीयर का एक पार्ट लिया, उसके पार्ट पे हम 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में पॉलिश कर सकते हैं. Yes, Aditi, do you have any question? No, ma'am. Okay. In this case, this is the one is reflecting. concave and one is convex. Yes, in this case, this is the reflecting surface. मैम. Yes. मैम, हम दूसरी अपोजिट साइड में पॉलिश क्यों करते हैं?
so that we can form this as a mirror. अभी तक तो ये ग्लास था बेटा, अगर उसको आप पॉलिश नहीं करोगे तो it will not convert to the mirror, it will not reflect the light will pass through that glass. Okay, this mirror is concave mirror and this is convex mirror. When the reflecting surface is bulging out, that mirror is called convex mirror. और when bulging out जो surface है उसके ऊपर हमने polish की, that is called concave mirror. Okay, concave mirror जो है वो light को एक जगह पे focus कर देता है. When light ray fall on this, it reflect the light and concentrate that on one particular point. That's why this is called concentrating the radiations at one point is called conversion. So this mirror is called converging mirror. Sorry. This mirror is called converging mirror. Converging mirror is concave mirror. And when light ray fall on this concave mirror, this scatters the light. ये light को क्या कर देता है? Scatter कर देता है. That's why this is called diverging mirror. Concave mirror आपने कहीं देखा बच्चे? मैम हेडलाइट्स. मैम हेडलाइट्स. बिल्कुल ठीक. मैम Why फोकस. we use? Yes, हम उसको वहां पे हेडलाइट में concave mirror का यूज क्यों करते हैं? मैम जो मैम पैरेलल बीम ऑफ. Yes, Akanksha, you tell. मैम बिकॉज अगर थोड़ी सी लाइट वहां पर आती है तो फिर वो सामने पूरे रोड पे वास्ट सरफेस पे वो स्प्रेड कर देता है, डाइवर्ज. Because concave mirror में यहाँ पे बल्ब लगा बेटा. मैम जब जो मैम बल्ब होता है मैम वो फोकस में जब रखा जाता है तो मैम वो इनफिनाइटली उसे मैम स्कैटर करते हैं मैम लाइट, मतलब रिफ्लेक्ट करता है. यस, ये आपकी हेडलाइट का अंदर वाला पार्ट है बेटा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और यहाँ पे उसका बल्ब लगा हुआ है. बल्ब से जो लाइट रे आई वो लाइट रे इस पाथ पे चली, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के बिल्कुल पैरेलल चली. जो पैरेलल रेडिएशंस होती हैं दे ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस. तो अब आप अगर हेडलाइट में रात को जा रहे हो, आपने लॉन्ग डिस्टेंस तक ही तो देखना है ना बेटा. बिल्कुल पास में जाके पता चले सामने एक गड्ढा है तो आप अपने आप को सेव कैसे करोगे? तो लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये दिस ड्यू टू दैट concave surface in the headlight, when the light from the bulb passes and get reflected, that gives you a parallel beam of light that travels longer distance, so person is able to see even longer distances. ठीक है? Yes, Aryan, what is your doubt? Okay, Deva. I just wanted to say that it is also used by dentists and also used in solar furnaces to concentrate sunlight. Yes, it is used in solar furnace also. बिल्कुल ठीक है बेटा, solar furnace में भी हम यूज करते हैं क्योंकि solar furnace में जो light radiations आ रही हैं वो मिरर पे फॉल करने के बाद फोकस पे जाएंगी. तो ये आपको पता ही ऑपोजिट है, जो यहाँ से आएगी बेटा वो यहाँ फॉल करेगी, जो यहाँ से जाएगी वो सामने चली जाएगी. तो वो सबको लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट करने के लिए सोलर फर्नेस में भी हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं. डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी. अभी मैं आपको कन्वेक्स मिरर का यूज बताना चाहती हूँ. Dentist use this mirror? Yes, Roseanne. Ma'am, can I tell why the dentist use the concave mirror? Okay, Roseanne, speak up. Yes, ma'am. Ma'am, dentists use a concave mirror as a concave mirror provides a magnified image of the tooth and it helps them to see the tooth very clearly then. Yes. Concave mirror generally form inverted image and smaller image, but it forms large, virtual and erect image
when object is placed between the focus and the pole of the mirror. So when that's why when dentists use this, he place that mirror in our mouth, and he is able to see that image of teeth that is enlarged, erect, and virtual image is there. Okay. Okay, convex mirror का कहीं यूज होता है? Yes, Deva, you tell. as a rear view mirror in vehicles. Yes, एक तो हो गया rear view mirror in vehicle, और कहीं पे जो अभी डायग्राम बना हुआ बेटा, इस डायग्राम के बेसिस पे आप बताइए। आर्यन, देवा, योर आंसर इज राइट। मैं जो आंसर चाह रही थी, जो आपको दिख रहा था कि ये लाइट को स्कैटर करता है, डाइवर्ज करता है, मुझे वो वाला आंसर चाहिए। वो उसका यूज कहीं होता है। यस मैम, एक और कन्वेक्स मिरर जो है वो टी रोड इंटरसेक्शन में एक मिरर लगा होता है मैम, साइड में देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल लगा होता है, ठीक है, वहां पर भी ठीक है। यस आर्यन। ओके हार्दिक। मैम आई थिंक सो, हम जो स्पेक्स पहनते हैं, मिरर नहीं होता स्पेक्स में, दैट इज लेंस। मिरर तो रिफ्लेक्ट कर देगा बेटा। आपके जो स्पेक्स होते हैं हमारे, वो होते हैं ग्लासेस, दे आर सिंपल ग्लासेस, वो रिफ्रैक्शन शो करते हैं। यस अनुज। मैम दैट डाइवर्जिंग मिरर इज प्रेजेंट इन टॉर्च लाइट। नो नो नो, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर बेटा। टॉर्च लाइट, हेडलाइट सब में आपका ये कनकेव मिरर होता है। ये यूज आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा, बट आपके एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जिंग मिरर इज यूज्ड इन द स्ट्रीट लाइट। आपने देखा होगा जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कहाँ पे बेटा? यस, हु वाज स्पीकिंग? मैम सनग्लासेस में, और दैट इज लेंस बेटा, not mirror. Ma'am, which light you say? Street light. Okay, ma'am. This is used in street light. Street light के केस में आपके पास जो आपने देखा होगा बेटा, स्ट्रीट लाइट से लाइट आती है, वो बहुत जगह पे फैल जाती है, देखा है ना? काफी ज्यादा जगह पे, नीचे आप खड़े होते हो स्ट्रीट लाइट के, तो आपको काफी जगह तक दिखता है कि उसकी लाइट बहुत जगह पे फैलती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो, उसके पीछे जो सरफेस है बेटा, दैट इज कन्वेक्स, उसको कन्वेक्स बना रखा है, वो लाइट को डाइवर्ज करती है। एक्सक्यूज मी मैम। यस अनुज। मैम बट टॉर्च लाइट में भी तो मैम वैसा होता है, टॉर्च में तो स्प्रेड करती है। स्प्रेड नहीं करती बेटा टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट को आपको देना है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। टॉर्च लाइट में कनकेव मिरर होता है। आप देखना, टॉर्च में सेंटर में ये इस टाइप का सर्कल होता है, इसके सेंटर में बल्ब लगा है ना, वो अंदर की तरफ डिप है, तो वो दैट इज कनकेव। यस आकांक्षा। मैम रोड्स में जो जहाँ पे दो रोड्स एक साथ मिलते हैं, वहाँ पे एक गोल सा मिरर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज कन्वेक्स। उसका जो लॉजिक है बेटा, वो तो अभी आएगा ना, मैं आपको जब इमेजेस बताऊंगी। ट्रैफिक लाइट के अंदर कौन से वाला मिरर लगा होता है? कहाँ पे? मैम ट्रैफिक लाइट के अंदर। ट्रैफिक लाइट में कोई मिरर नहीं होता है, दैट इज ग्लास ओनली। मिरर विल रिफ्लेक्ट द लाइट ना, मिरर तो रिफ्लेक्ट करेगा और ग्लास के अंदर से ट्रांसमिट होकर के आप तक पहुंचेगी लाइट। ओके, मैं जस्ट आपको सबसे पहले वाले वो जो मैंने इमेजेस बताई कि इसका कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है, उसके बेसिस पे पूछना चाह रही थी कि इनके यूजेस क्या है। बाकी जो इमेजेस हैं वो नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी, तब उनके यूजेस वहां पे बताएंगे कि इस इमेज के कारण इसका यहाँ पे यूज होता है, इस इमेज के कारण इसका यहाँ पे यूज होता है। ओके, चलिए स्टूडेंट, आज इतना ही करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास। आप जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन memorize the images of concave and convex, lens and mirror both. Okay, ma'am 9th one you can also read this light chapter. Okay ma'am. Okay, you can also read sound chapter, because the laws of reflection are similar to the laws for sound and light, they are same. Okay ma'am.
मैम Yes.